Hello students, welcome all of you. I am Poonam Gidwani, your EVS teacher. We have completed chapter number 17 and today we will start chapter number 18, that is various occupations for everyone. Students, what do? You study, right? So you are a student. What does your father do? Is your father a teacher or a doctor or a cobbler or a barber? What does your mother do? Is your mother a tailor or a teacher or a doctor? So when we grow up, we have to work to earn a living. So the work we do to earn a living is known as occupation, and in this chapter we will discuss different occupations and we will discuss work and time. So let's start our chapter. Anita's father sells milk. So students, here we are talking about Anita. Anita is the name of a girl and Anita के पापा का occupation क्या है? Anita's father sells milk. वो milk sell करते हैं, दूध बेचते हैं. Right? There are many cows and buffaloes in their home. So here we are talking about Anita's home, and in Anita's home there are so many cows and buffaloes. Anita के घर पे बहुत सारी गाय है और बहुत सारी भैंस है, right? And Anita's mother and father get up early in the morning to give fodder and water to kettle. And Anita के mother and father means Anita's parent क्या करते हैं वो? Anita's parents get up early in the morning. Anita के मम्मा and पापा सुबह जल्दी उठते हैं. It's a very good habit. But let's know कि वो सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? Because they have to give fodder and water to cattle. वो क्या करते हैं सुबह जल्दी उठ के? जो cattle है उनको water देते हैं और fodder देते हैं. Fodder means the farm animals food. Food that is given to farm animals. जो हम काऊ को बफेलो को चारा देते हैं उसको हम बोलते हैं फॉडर. ओके, तो अनीता के मदर एंड फादर सुबह जल्दी उठ के कैटल को वाटर देते हैं, फोडर देते हैं. ओके, एनिमल्स को भी भूख लगती है, दे ऑल्सो फील थ्रस्टी एंड हंग्री, तो उसके लिए अनीता के मदर फादर सुबह जल्दी उठते हैं और उनको फॉडर और वाटर देते हैं. आफ्टर फीडिंग दे मिल्क दैम एंड फिल द ड्रम्स. आफ्टर फीडिंग, जब उनका पेट भर जाता है कैटल का, आफ्टर दैट दे हियर मीन्स अनीताज पेरेंट्स. अनीताज पेरेंट्स मिल्क दैम, उनका दूध निकालते हैं काऊ का एंड बफेलो का, एंड फिल द ड्रम्स. और जो ड्रम्स होते हैं मीन्स जिनमें दूध को रखा जाता है, दूध को स्टोर किया जाता है सेल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं ड्रम. ओके, तो जो बड़े बड़े ड्रम्स हैं फिर वो उनमें दूध को फिल करते हैं, भरते हैं. हियर यू कैन सी इन दिस इमेज, हियर you can see Anita's father and Anita's mother. Here you can see the kettle, and what are they doing? Anita के मम्मा पापा क्या कर रहे हैं? They are milking. वो क्या कर रहे हैं? गाय और भैंस का, काउ एंड बफेलो का दूध निकाल रहे हैं. ओके, अब वो क्या करेंगे दूध निकालने के बाद? They will fill the drums. और वो ड्रम्स क्यों फिल करेंगे? Because they will sell the milk, right? तो ये अनीता के मदर और फादर का occupation है. Her father takes these drums to city on motorcycle for selling milk. So here in this image you can see Anita's father, and where is he going? He is going to city. And why is he going to city? He is going to city for selling milk on मोटरसाइकिल, राइट. सो अनीता के फादर क्या करते हैं? इन ड्रम्स को सिटी ले जाते हैं, शहर ले जाते हैं, और इसके लिए वो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं? ही यूजेस मोटरसाइकिल. मोटरसाइकिल पे वो इन ड्रम्स को लेकर जाते हैं सिटी में. क्यों? मिल्क को सेल करने के लिए, दूध को बेचने के लिए. वाई? टू अर्न अ लिविंग, राइट. Anita and his brother Mahesh help parents in day-to-day work. Here we are talking about Anita and his brother. And what's the name of Anita's brother? Mahesh. Anita के भाई का नाम क्या है? महेश. And दोनों के दोनों बच्चे Anita and Mahesh, they help
देयर पेरेंट्स, वो अपने मदर की और फादर की, मम्मा और पापा दोनों की हेल्प करते हैं इन डे टू डे वर्क, डेली रूटीन के जितने भी काम होते हैं उसमें वो उनकी हेल्प करते हैं. आफ्टर दिस दे गो टू स्कूल एंड आफ्टर हेल्पिंग देयर पेरेंट्स अनीता एंड हिज ब्रदर गो टू स्कूल. वो दोनों कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं. सो हमने अभी क्या जाना? अनीता's फादर इज अ मिल्क सेलर. राइट, क्या करते हैं वो? दूध बेचते हैं. सो अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ अनीता's फादर, सो हम क्या आंसर देंगे? अनीता's फादर इज अ milk seller. Okay, let's discuss some more occupations. Neelam is Anita's friend. So here we are talking about Anita's friend. And what is the name of Anita's friend? Neelam. Okay, Neelam's parents are in government service. और नीलम के जो पेरेंट्स है मीन्स नीलम्स मदर एंड फादर, नीलम के जो मम्मा पापा हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है? दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट. वो सरकारी नौकरी करते हैं, वो सरकारी सेवा में हैं, गवर्नमेंट सर्विस. राइट, बोथ ऑफ देम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड फिनिश द हाउस होल्ड टास्क jointly, and both of them, here we are talking about parents of नीलम. तो नीलम के जो मम्मा पापा हैं वो क्या करते हैं? दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वाओ, वंस अगेन इट्स अ वेरी गुड हैबिट. सुबह जल्दी उठना चाहिए ना हमें. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस चैप्टर्स, राइट? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. सो अनीता के पापा सुबह जल्दी उठते हैं, मम्मा भी सुबह जल्दी उठते हैं एंड फिनिश द हाउस होल्ड टास्क जॉइंटली. और घर के जितने भी काम हैं वो दोनों मिलकर, जॉइंटली मीन्स दोनों मिलकर, टास्क मीन्स वर्क्स, जो भी वर्क्स हैं, जो भी काम हैं, जॉइंटली दोनों मिलकर उसको कंप्लीट करते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं. फादर लीव्स अनीता टू द स्कूल व्हाइल गोइंग टू ऑफिस. सो अनीता के फादर क्या करते हैं? जब वो ऑफिस जाते हैं, while going to office, ऑफिस जाते वक्त अनीता को स्कूल छोड़ देते हैं. And in the evening he returns from office and brings the required household things. In the evening means शाम को, because we have just discussed that in the morning वो क्या करते हैं? अनीता को स्कूल छोड़ देते हैं. and here we are talking about the routine of evening. तो evening में क्या करते हैं? वो ऑफिस से वापस आते हैं जब घर पे, brings the required household things. तो घर पे कोई भी जो ज़रूरत का सामान होता है, required जो things होती हैं घर की, वो उसको लेते हुए आते हैं. right, नीलम्स मदर brings milk while returning from office. और नीलम की मम्मा क्या करती हैं? जब वो ऑफिस से वापस आती हैं तो घर आते वक्त दूध लेकर आती हैं. ओके, हर पेरेंट्स कुक फूड टुगेदर एंड ऑल ऑफ देम ईट टुगेदर. वाओ, अगेन हियर इज अ गुड हैबिट दैट उसके जो पेरेंट्स हैं मीन्स मम्मा एंड पापा कुक फूड टुगेदर. वो दोनों साथ मिलकर खाना बनाते हैं, बिकॉज दोनों ही ऑफिस जाते हैं तो मम्मा भी थकी हुई होती है, पापा भी. राइट, सो दे हेल्प ईच अदर. दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और साथ में फूड कुक करते हैं, खाना बनाते हैं. एंड ऑल ऑफ देम, और सारे मिलकर साथ में खाना खाते हैं. ऑल ऑफ देम ईट together. Both help Neelam in completing her homework. Both means here we are talking about her parents. Okay, तो दोनों ही, उसके मम्मा एंड पापा दोनों ही नीलम की हेल्प करते हैं किस में? इन कंप्लीटिंग हर होमवर्क, उसको होमवर्क को कंप्लीट करने में. सो वी शुड ऑलवेज हेल्प ईच अदर इन ईच एंड एवरी वर्क. हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, फिर चाहे कोई भी काम हो. ओके, people do different works according to their interests and skills for their living. So लोग क्या करते हैं? different works करते हैं. अभी हमने बात की previous chapter में, तो वो कौन था? पॉटर था. राइट, उसका जो इंटरेस्ट था पोट्री में था, वो कुम्हार था. एंड हियर हमने बात की
एक मिल्क सेलर की, उसके बाद हमने बात की गवर्नमेंट सर्वेंट की, राइट। तो जो लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग काम करते हैं, जिसमें भी उनका इंटरेस्ट होता है, जिसमें भी उनकी रुचि होती है, एंड स्किल्स, और जिसमें उनकी स्किल्स होती हैं, उन्हें जो काम बहुत अच्छे से आता है, जो वो कुशलता से कर सकते हैं फॉर देयर लिविंग, जीविका कमाने के लिए। एग्जाम्पल टेलर, cobbler, doctor, teacher, etc. So here some occupations are given. Tailor, what is the work of a tailor? To stitch clothes, to make clothes, right? Tailor क्या करता है? कपड़ों को सिलता है, means दर्जी. Cobbler, a person whose job is to mend shoes, to repair shoes, right? तो cobbler क्या करता है? शूज़ को मेंट करता है, शू पॉलिश करता है. Cobbler means मोची. डॉक्टर, a person who treats sick persons, बीमार लोगों को जो ठीक कर देता है. And teacher, so here in front of you I am your teacher, जो आपको पढ़ाता है. So all these are occupations. Okay, let's discuss some more occupations. Here in front of you there are some images. First image we can see here. What is written here? Suresh Furniture. So what is the occupation here? Yes, Suresh is a carpenter. What is the meaning of a carpenter? Yes, carpenter is a person whose job is to make things from wood, जो कि लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनाता है, फर्नीचर बनाता है. Yes, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बढ़ैया खाती. Right, so we can write here carpenter. Okay, next one is Prem Hair Salon. Yes, so here we can see in this picture, and the occupation here is, yes, it's a barber. So what is the meaning of a barber? हमारे जो हेयर कट करते हैं और जेंट्स की जो शेविंग की जाती है उसको हम बोलते हैं, वो जो पर्सन होता है दैट इज़ अ बार्बर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नाई. राइट, एंड नेक्स्ट वन इज़ वी कैन सी हेयर व्हाट द पर्सन इज़ डूइंग. मिठाइयाँ बन रही है, एंड हेयर वी कैन सी क्या लिखा हुआ है, लाला कचौड़ी. सो इट्स अ कन्फेक्शनर. राइट, और इसका काम क्या होता है, बहुत सारी अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनाना. राइट, सो द ऑक्यूपेशन हेयर इज कन्फेक्शनर. एंड नेक्स्ट वन वी कैन सी हेयर ग्रॉसरी. हमें यहाँ पे ग्रॉसरी दिख रही है, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ग्रॉसरी को जो सेल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉसर. राइट, सो ये एक जनरल स्टोर भी है, एंड वी कैन सी ये ग्रॉसरी सेल कर रहा है, तो वी कैन राइट हेयर ग्रॉसर. सो हेयर आर सम मोर इमेजेस. यहाँ पे तो लिखा हुआ है ऑलरेडी किशन आर्टिसन. आर्टिसन क्या होता है, अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स स्किलफुली स्पेशली विद हिज हैंड्स, जो अपने हाथों से स्किलफुली अलग अलग चीज़ें बनाता है. राइट, हियर यू कैन सी ये आदमी क्या कर रहा है, उसने ब्रिक्स ली है और वॉल बन जाती है, वॉल से फिर घर बन जाता है. राइट, उसको हम बोलते हैं आर्टिसन. ओके, एंड हियर वी कैन सी मदन ब्लैकस्मिथ. ब्लैकस्मिथ क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं लुहार. अ पर्सन whose job is to make and repair things made of iron. right, लोहे की चीज़ों को जो यूज़ करके सामान बनाता है, अलग अलग लोहे की जो चीज़ें हैं उनको रिपेयर करता है, उसको हम बोलते हैं ब्लैकस्मिथ या लोहार. ओके, सो सम स्पेसिफिक वर्कर्स आर नॉन विद स्पेसिफिक नेम्स. कुछ स्पेसिफिक जो वर्कर्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर नेम होता है. फॉर एग्जाम्पल, हु वर्क्स ऑन टिम्बर इज नॉन एज कारपेंटर. तो जो लकड़ी का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कारपेंटर. अभी अभी हमारे पीछे इमेज गई थी ना, सुरेश फर्नीचर. राइट, यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन सच वर्कर्स. आपने भी कुछ वर्क्स ऐसे देखे होंगे, ऐसे वर्कर्स को देखा होगा जिनका एक स्पेसिफिक वर्क होता है एंड उनका स्पेसिफिक नेम होता है. जैसे अभी हमने देखा ना, कारपेंटर, बार्बर, ब्लैकस्मिथ, आर्टिसन. राइट, कन्फेक्शनर.
तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक वर्कर्स होते हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक वर्क होता है और उनका स्पेसिफिक नेम होता है. ओके स्टूडेंट्स, फैमिली इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी इन विच all the members live happily. So here we are talking about family. So what is the smallest unit of society? Society की, हमारे समाज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है. Smallest means इससे स्मॉल कोई यूनिट नहीं होती. ओके, सबसे स्मॉल होती है ये यूनिट. सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको हम बोलते हैं फैमिली, हमारा परिवार. ओके, जहाँ पर सारे के सारे मेंबर्स हैं वो हैप्पीली रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं. हम हमारी फैमिली में हैप्पी होते हैं ना, राइट? यू ऑल डू सम वर्क एट होम. और हम सारे के सारे कोई ना कोई काम ज़रूर करते हैं घर पे, राइट? हम अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारी हेल्प करते हैं. तो अभी हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. लेट्स डिस्कस वर्क्स एंड time. We do different works at different times. हम सब different works करते हैं, right? कोई किचन में खाना बनाता है, कोई घर की सफाई करता है, someone helps us in our homework, कोई दूध लेकर आता है. तो different works are done by different persons at different times. और उन works का एक different time होता है. ऐसा तो नहीं है हम कोई भी काम कभी भी कर सकते हैं, right? So there is a specific time for every work. Some works should be done at scheduled time. तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको एक scheduled time पे, fixed time पे, particular time पे करना चाहिए. For example, cleaning teeth should be done just after getting up in the morning and before sleeping at night. So we have already discussed this in our previous chapters. So हमें सुबह उठते ही ब्रश करना चाहिए. We should brush twice a day. And second time कब करना चाहिए? Before sleeping at night. रात को सोने से पहले. So it is an example कि जो कुछ works हैं वो scheduled time पे ही करने चाहिए. And brushing teeth is one of them. कि हमें हमारे दांतों की सफाई सुबह उठते ही करनी है, जैसे ही हम सुबह उठ जाते हैं, and before sleeping at night, और रात को सोने से पहले. क्यों? We have already discussed this thing to avoid infections and cavities and foul smell, right? And for sparkling white teeth. Okay students, along with work there should be a fixed time for sleeping also at night. And students, we cannot work for the whole day, right? तो हमारे resting hours भी ज़रूरी हैं. So along with work, काम के साथ साथ there should be a fixed time. एक fixed time होना चाहिए हमारी sleeping के लिए भी. रात को early to bed, early to rise. Okay? तो ऐसा नहीं है कि हम रात को देर रात तक काम कर रहे हैं. No, it's not good for our health. So रात को हमारी sleeping का time भी fix होना चाहिए. Children should take approximately 8 hours sleep. और बच्चों को specially minimum कितनी sleep required है? 8 hours. Approximately about 8 hours. Okay? लगभग बच्चों को 8 घंटे तो सोना ही चाहिए. We should take evening meal 2 hours before going to bed. So here we are talking about works and time. Okay? तो sleeping के लिए हमें कितने hours चाहिए? 8 hours. Do you sleep for 8 hours? क्या आप सोते हो 8 hours? If not, it's not good for your health. आपको 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए. If you don't do so, it's not good for your health. आपके हेल्थ के ये सही नहीं है. And here we are talking about evening meal. तो हमारा जो evening meal है, शाम का जो भोजन है, वो हमें सोने से कितने घंटे पहले लेना चाहिए? At least 2 hours before going to bed. Sometimes what happens, हम खाना खाते ही सो जाते हैं and it's not good for our health. हमारे खाना खाने के बाद कम से कम 2 hours का गैप होना चाहिए हमारे सोने और खाने के बीच में. So we should take evening meal 2 hours before going to bed. This makes our body healthy. Yes, और ये हमारी बॉडी को healthy बनाता है. So if you want to stay healthy, what should you do? You should take proper rest. You should take 8 hours sleep and
you should take evening meal 2 hours before going to bed. Okay. Now let's discuss your daily routine. So here we have been given clocks and we need to show the daily routine timings in the given diagram of the clock. So हमें जो diagram दिए गए हैं इसमें हमें हमारा जो daily routine का timing है वो बताना है. So let's start with the first one. Getting it time. So when do you get up in the morning? I get up at 6 o'clock in the morning. So we will draw like this, right? So this is my getting it time. If you wake up at 5 o'clock, you can change the diagram. अगर आप 7 o'clock उठते हो, you can draw like this, okay? But you should wake up early in the morning. After that, time of going to school. So when do you go to school? So it's 10 o'clock, right? So I'm drawing like this. So it is 10 o'clock and 10 o'clock is the time of going to school. Here I am drawing according to you. मैं यहाँ पे जो भी images बना रही हूँ, जो time show कर रही हूँ, that is according to you. Because mostly हम क्या करते हैं 10 o'clock school जाते हैं. Time of returning from school. You can change this time. अगर आपका school time different है तो आप उसको change कर सकते हो. Okay? Here are some examples only. आपके लिए मैं सिर्फ कुछ examples दे रही हूँ. You can change this according to you. So here we are talking about time of returning from school. So हम school से वापस कब आते हैं? So it's 4 o'clock, right? So here I am drawing 4 o'clock. Yes. So let's move to next diagram. Time of studying at home. So I am writing here 5 o'clock. Okay. So it's the timing of studying at home. क्योंकि घर पे भी तो हमें स्टडी करनी होती है. So मैंने यहाँ पे 5 o'clock आपको स्टडी करवाई है. So when do you study at home? You can change accordingly. Okay. Next one is time of playing. So when do you play? हमारा playing time भी तो ज़रूरी है ना? Only studies, only work? No. Playing time भी हमारी life में बहुत important होता है. So what is the time of playing? I am drawing here 6 o'clock. Okay. So this is your time of playing. Once again I am telling you, you can change according to your schedule. Okay. Now time of sleeping. So हमें at least 8 hours की sleep तो लेनी है, right? So if we will sleep at 10 o'clock and if we are waking up at 6 o'clock in the morning, we will have enough sleep. Okay. So it's 10 o'clock and that is time of sleeping. And if you sleep before 10 o'clock, you can change it. And if you sleep after 10 o'clock, once again you can change it. So it's all about your timings and your schedule. And now it's a time for a beautiful story. Okay. Anita's neighbor Devji sells vegetables in the market on a stall. So here we are talking about Anita's neighbor. हम बात कर रहे हैं अनीता के neighbor की. And what is the name of Anita's neighbor? देवजी. अनीता के जो पड़ोसी हैं देवजी, उनका occupation क्या है? देवजी sells vegetables in the market on a stall. तो देवजी क्या करते हैं? Vegetable sell करते हैं, सब्जियां बेचते हैं. शॉप पे नहीं, कहाँ पर? ऑन अ स्टॉल. तो देखिए जो वेजिटेबल सेलिंग होती है शॉप्स पे भी होती है, दुकान पे भी, और जिनके पास शॉप्स नहीं होती फिर वो स्टॉल पे वेजिटेबल सेल करते हैं. ओके. हिज सन राकेश. किसका सन? देवजी का सन. ओके. सो देवजी सन राकेश यूज्ड टू गो टू स्कूल बट, तो देवजी का जो बेटा है राकेश, he used to go to school. वो स्कूल जाता था, but not now. क्यों नहीं जाता? What happened? When their business expanded, his father stopped sending him to school and employed him in selling vegetables. So Rakesh used to go to school. राकेश स्कूल तो जाता था, but
when their business expanded, जब उनका बिजनेस बिगर हो गया, मतलब उनका बिजनेस ज़्यादा अच्छा होने लगा, ज़्यादा कस्टमर्स आने लगे, उसके फादर को किसी की हेल्प की नीड थी, तो उन्होंने क्या किया, हिज फादर स्टॉप्ड सेंडिंग हिम टू स्कूल, उसके पापा ने उसे स्कूल भेजना रोक दिया. हिज फादर स्टॉप्ड सेंडिंग हिम, उसको स्कूल भेजना बंद कर दिया. एंड एम्प्लॉयड हिम इन सेलिंग वेजिटेबल्स, और उसको अभी से ही एम्प्लॉयड कर दिया, उसको किस में लगा दिया, सेलिंग वेजिटेबल्स में, सब्जियां बेचने के काम पर उसको लगा दिया. और इससे क्या हुआ, उसका स्कूल जाना बंद हो गया. उसके बाद क्या हुआ, यू वांट टू नो, लेट्स सी. Now every day he helps his father in selling vegetables. It's a good thing that he is helping his father. Okay, but here is a bad thing, that now he is not going to school. So every day means daily वो क्या कर रहा है, Rakesh helps his father. His father means देवजी. राकेश रोज अपने पापा की हेल्प कर रहा है सेलिंग वेजिटेबल्स, सब्जियों को बेचने में. One day, एक दिन, when Rakesh came home, a smell was coming from his mouth. So here is a turn in the story. एक दिन जब राकेश घर पे आता है तो उसके मुंह से एक स्मेल आ रही होती है. ओके, हिज मदर आस्क्ड. नाउ राकेश की मम्मा पूछती है, हैव यू स्मोक्ड बीड़ी? सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्मोकिंग. ओके, सो राकेश की मम्मा को डाउट होता है कि ये जो स्मेल है ये बीड़ी की है. ओके, सो राकेश की मम्मा पूछ रही हैं कि क्या तुमने बीड़ी पी है? नाउ ही डिड नॉट रिप्लाइड, बट हर मदर रियलाइज्ड. उसने रिप्लाई तो नहीं किया, ही डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन उसके मदर को रियलाइज़ हो गया. राकेश ने रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने वाकई में बीड़ी पी थी, राइट. इसलिए वो अपनी मम्मा को रिप्लाई नहीं कर पाया, वो डर गया, राइट. लेकिन उसकी मम्मा को स्मेल से आइडिया हो गया. उसकी मम्मा ने स्मेल से और राकेश के साइलेंस से रियलाइज़ कर लिया, महसूस कर लिया दैट राकेश हैज़ स्मोक्ड बीड़ी. ओके, then she decided not to send राकेश to the stall. अब राकेश की मम्मा ने क्या डिसाइड किया, that she will not send राकेश to the stall. अब वो राकेश को स्टॉल पे वेजिटेबल सेलिंग के लिए नहीं भेजेंगी. अब वो उसको स्टॉल पे सब्जियां बेचने के लिए दोबारा नहीं भेजेंगी. She decided to send him to school. Wow, here's a good thing कि राकेश की मम्मा ने क्या डिसाइड किया. She decided to send him to school, कि अब वो उसको कहाँ भेजेंगी, स्कूल भेजेंगी. ओके, then she remembered. अब उनको क्या याद आया, टीचर्स एडवाइस गिवन टू फादर. अब उनको टीचर की सजेशन, टीचर की एडवाइस याद आई है जो कि राकेश के फादर को दी गई थी, दैट राइट टू एजुकेशन, जो शिक्षा का, एजुकेशन का जो राइट है, हैज़ बीन इनेक्टेड. अब वो कानून है एंड इट इज़ कंपल्सरी. अब बिल्कुल कंपल्सरी हो गया है कि आपको जो एजुकेशन है वो अपने बच्चे को देनी ही पड़ेगी. इट इज़ कंपल्सरी, यू हैव नो चॉइस. आपको कंपल्सरी हो गया है, ज़रूरी हो गया है. अब आपको राकेश को स्कूल भेजना ही होगा. दैट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट. Besides this, she also decided to send her little daughter to school. और इतना ही नहीं, अब राकेश के साथ साथ उसकी मम्मा ने क्या डिसाइड किया, उनकी जो लिटिल डॉटर है, छोटी डॉटर है, अब वो उसको भी स्कूल भेजेंगे. वाओ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज एजुकेशन इज़ अ वेरी गुड थिंग. एजुकेशन के बिना तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, राइट. तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो लिटिल डॉटर है, छोटी बेटी है, अब वो उसको भी स्कूल भेजेंगे एंड टू प्रोवाइड हर
हायर एजुकेशन, और उन्होंने डिसाइड किया कि स्कूल के बाद वो उसको हायर एजुकेशन भी देंगे. वाओ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट द ऑक्यूपेशंस, वर्क, टाइम एंड right to education. In next part of this chapter, we will discuss some questions and answers. So we will meet in next part of this chapter. Till then, have a good day. Thank you.